حسبه تعالى والصلاة والسلام على رسوله الأعلى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر پاک پر تشریف فرما مقتدر محتشم مکرم علماء ذوی احترام معزز سامع نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے اور آپ ہی کی زبان میں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ نہیں آیا ہو، سلام تو سمجھ آتے ہی ہے نا، کر لیا ہوں، اگر چاہو تو آپ جواب دے سکتے ہو، اگر آپ چاہو تو جواب دے سکتے ہو سلام کا، زور سے۔ وعلیکم السلام، جب تک میں پانی پی لوں آپ جواب دے دو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد عشاء سے لے کر آپ کا یہ پروگرام، بیٹا یہ جلسہ ہے، ٹانگیں آپ نیچے کر دو، بڑی کامیابی کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب ختم کر لیا جائے گا جلدی۔ آپ 5 منٹ سنیں گے، 4 منٹ سنائیں گے اور سلام انشاءاللہ۔ 10 منٹ چاہو گے تو 9 منٹ، اور اگر فجر تک چاہو گے تو فجر تک بھی لگے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ پہلی چیز تو یہ میں محسوس کر رہا ہوں آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، آپ کے اوپر شامیانہ نہیں ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں بزرگ حضرات بھی ہیں، ہمارے نوجوان حضرات بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور بہت سارے سو بھی رہے ہوں گے، ان کا کام سونے کا، وہ سوتے رہیں، ان سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں، اگر ٹھنڈ لگ رہی ہو تو آپ آگے بھی آگے بیٹھ سکتے ہیں، کرسی کی خالی ٹھنڈ لگ رہی ہو تو، اور نہیں لگ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، کرسی چھوڑنی بھی نہیں چاہیے، کبھی کوئی اور قبضہ کر لے، پریشانی تو یہ ہے نا۔ تو سنیں گے آپ لوگ جی؟ کب تک سنیں گے؟ جب تک سنو تو آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، سبحان اللہ، آدھا گھنٹے میں جانچ لیں گے۔ چلیے، غنیمت ہے صاحب آج کے دور میں اگر کوئی کسی کی سن لے، ورنہ سننے کے لیے تیار کہاں ہے ہمیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے شعراء دام سے نعت و منقبت اور قاری شاہد علی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اسے بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا، اور ناظم صاحب سے بہترین نظامت آپ نے سماعت کی۔ ہمارے دولہ صاحب بھی ہیں، چند باتیں مجھے بتانی ہیں شادی کے تعلق سے، اور انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جلسہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دین سیکھا اور سکھایا جائے، جلسے کا اصل مقصد ہوتا ہے دین سیکھنا اور سکھانا۔ باقی آپ جلسے کو کسی بھی وے پہ لے جائیں، کسی بھی راستے پہ لے جائیں، وہ الگ بات ہے، مگر جلسے کا اصل مقصد ہے دین سیکھنا اور سکھانا۔ یہ جلسے کی برکت ہے، ذکر رسول کی برکت ہے، آپ کی اور ہماری ملاقات ہو گئی، ورنہ ہم کہاں آپ کہاں، پتہ نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ ملاقات ہو یا نہیں ہو، یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے۔ باقی تو آج کے دور میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا، کوئی باتیں مت کریے میرے بھائیوں، باتیں مت کرنا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ جا کے سن سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس لیے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ محفل چھوٹی محفل نہیں ہوتی، چاہے انسان آئے نہ آئے، مگر اس محفل میں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو، جہاں بات و نصیحت کی باتیں ہوں، وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہمیشہ بڑی محفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
आइए इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहो तो सो के सुन लो, मैं भी सो के सुना दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आप सुनोगे वैसे मैं सुना दूंगा। आप चाहो तो कादिर रंग चढ़ा के सुनो, और जब कादिर रंग चढ़ जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह याद भी हो जाएगा आपको। मेरा मकसद है आपको याद कराना। मैं आपके बारगाह में तकरीरी जुमले पेश नहीं करूंगा, मुझे तकरीरी जोहर दिखाने नहीं है, क्योंकि मैं आपके मूड को और मिजाज को समझ रहा हूँ। बस मेरा मकसद ये है कि थोड़ी देर आपको पढ़ाना है क्लास के तौर पर, आप पढ़ लीजिएगा, खुद भी याद कर लें और जरूरत पड़े तो दूसरों को भी बता दें। मेरा मकसद ये है, अब आपको अच्छा लगे या न लगे, बुलाओ मत बुलाओ, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी नहीं बुलाएगा तो घर बैठे दिन की तबलीग कर लेंगे, बहुत सारे जराए हैं, मगर हमारा मकसद ये है बस अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कबूल हो। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कबूल हो। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया। इस दुनिया के सबसे पहले इंसान जिनको सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो अबुल बशर है, वो अबुल बशर है। सबके बाप कौन है? वो आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके बाद में अल्लाह पाक ने बाईं पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया, और इन्हीं दोनों हजरात से फिर ये दुनिया नस्ल इंसानी आगे बढ़ी जो आज तक मौजूद है और मौजूद रहेगी। तो सबसे पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने फरमाया, अब देखिए दुनिया में आप, अल्लाह पाक ने हर चीज का जोड़ा बनाया, ऐसे ही मर्द औरत का जोड़ा बनाया। मर्द औरत के बगैर बेकार है और औरत मर्द के बगैर बेकार है। औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं, ऐसे ही मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं। जब तक इन दोनों का कनेक्शन ना हो, रब्त और ज़ब्त ना हो, इंसानी जिंदगी नहीं। इन दोनों का रब्त और ज़ब्त जरूरी। अब रब्त और ज़ब्त कैसा हो, कांटेक्ट कैसा हो, ये भी समझने की जरूरत है। भाई वो और है जिनके पास जीने का तरीका नहीं, वो और है जिनके पास जीने का सलीका नहीं, वो और है जिनके पास कोई निसाब नहीं, कोई कोर्स नहीं, वो खुले हैं, वो आवारा हैं, जैसे चाहते हैं जब चाहते हैं रखते हैं, जब चाहते हैं छोड़ देते हैं। ये उनके यहाँ है। मगर तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, तुमने कुरान पढ़ा है, तुमने रसूल की हदीस पढ़ी है, तुम आवारा नहीं हो, तुम खुले हुए नहीं हो, तुम अल्लाह अकबर कबीरा लावारिस नहीं हो। तुम्हारे लिए हद लगी हुई है, तुम्हारे लिए फाउंडेशन है, तुम्हारे लिए दीवार कायम कर दी गई है, इससे पीछे पीछे रहना है, इसके आगे नहीं जाना है। अगर आगे जाओगे तो लाइन क्रॉस होगी, और जब लाइन क्रॉस होगी तो फिर खतरा है। खतरा किस चीज का है? ईमान का खतरा है, अकीदे का खतरा है, उसके अंदर ही अंदर रहना है। वो और है जिनके पास जीने का तरीका नहीं, वो और है जिनके पास रहने का तरीका नहीं, वो और है जिनके पास शादी का तरीका नहीं, निकाह का तरीका नहीं। एक साथ तो अपने मुकद्दर पे कुर्बान जा, अल्लाह ने तुझे ऐसी समझ अता की है। वरना बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, किसी ने चांद को देखा तो चांद की इबादत करने लगे, किसी ने सूरज को देखा तो सब सूरज की इबादत करने लगे, किसी ने सितारों को देखा तो सितारों की परस्तिश, किसी ने पहाड़ों की बुलंदी को देखा तो पहाड़ों को पूजना शुरू कर दिया, किसी ने दरिया को बहता हुआ देखा तो दरिया की इबादत करना शुरू कर दी, किसी ने किसी के आगे माथा टेका, किसी ने किसी के आगे माथा टेका। मगर जब आमिना के लाल आए और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अहद, ये लोगों अल्लाह सिर्फ एक है, माबूद सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तवज्जो फरमाया, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का लाख लाख एहसान अजीम है, अल्लाह का करोड़ों एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसी समझ और मलका अता किया है कि हम किसी मखलूक की इबादत नहीं करते, बल्कि उसकी इबादत करते हैं जिसने ज़मीन को पैदा किया, जिसने आसमां को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने सितारों को पैदा किया, जिसने दुनिया की हर शय को पैदा किया। और हद तो ये है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का नबी भी हूँ, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, खातिमुल अंबिया हूँ, सबसे बेहतर हूँ, मगर फिर भी खुदा नहीं हूँ। मेरा और आप सबका माबूद सिर्फ एक है, वो माबूद वो है जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। तो आप अपने मुकद्दर को कुर्बान है, इसकी ईगो कम कीजिएगा, इसकी ईगो कम करो। ऑपरेटर साहब है या नहीं है? नहीं? चलो आ जाएंगे। अगर साहब
जिंदा है तो जरूर आएंगे। अरे भैया मैं उस वाली मौत की बात नहीं कर रहा हूँ। नींद भी हदीस पाक में कहा गया, नींद जो है वो आधी मौत है। नींद क्या है? आधी मौत। आधी मौत है। देखते नहीं इंसान पड़ा होता है और साहब कभी बरसीन काट रहा है, कभी किसी की चोरी कर रहा है, कहीं खेतों में टहल रहा है, कहीं आसमान पर पहुंच गया, बोले आप कभी मैं गांव का प्रधान बन गया, मैं चेयरमैन बन गया, मैं विधायक बन गया। इंसान देखता नहीं देखता सोते हुए। उसके इंसान में दो तरह की रूह होती है। कितनी? दो तरह की रूह होती है। एक कहते हैं रूह जिस्मानी और एक कहते हैं रूह सुल्तानी। अरे भाई याद करते हो कौन सा कोई काम में समझ नहीं आ रहा। कभी चोर परेशान कर रहे हैं, कभी कुत्ते परेशान कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, होना क्या है। बोलिए बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर साहब कुत्ता भी अगर वफादार हो, कुरान करीम ने उसको बयान किया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअही बिल वसीत। असहाबे कहफ का आपने जिक्र सुना होगा, उनका कुत्ता था। अल्लाह पाक ने कुत्ता जैसे बैठा था उनकी रखवाली कर रहा था, अल्लाह पाक ने उसका भी जिक्र कुरान करीम में फरमा दिया। मतलब ये है कुत्ता हो अगर वफादार हो तो तब भी उसका जिक्र कुरान करीम में होता है और उसका हमेशा नाम जिंदा रहता है। इंसान तुझे तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तू तो नबी का उम्मती है, उस नबी का कलमा पढ़ने वाला है जिस नबी की उम्मत में नबियों ने जिस नबी की उम्मत में होने के लिए नबियों ने दुआ की है। अगर तू नबी का वफादार बन जाएगा तू चला जाएगा, सदी गुजर जाएंगी, मगर अल्लाह पाक तेरे नाम को और काम को हमेशा के लिए जिंदा रखा। सुभान अल्लाह। तो मैं आपको बता रहा था अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने आपको वो मौका अदा किया है। आप मखलूक की इबादत नहीं करते बल्कि खालिक की इबादत करते हैं। मैंने बताया कि मर्द औरतों का लिबास, औरत मर्दों का लिबास। असल में ये मुझे माइक डिस्टर्ब कर रहा, मेरी आदत ये है मैं जोर से बोलूंगा तो इसकी इको ज्यादा आपकी समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इको कम होनी चाहिए ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाएंगे कहीं ना कहीं तो होंगे। अरे भैया कोई और मत करिए जिससे आता नहीं, कहीं पता लगा इससे भी काम खराब होना। हाँ हो जाता है माशाल्लाह। अब बैठ जाइए जरा, सुनिए आपको बच्चों के साथ, बोले जरा सुभान अल्लाह। अरे इतने थोड़ी हो बगैर माइक के भी कर सकता हूँ अगर सुनोगे तो। अरे भाई इसकी क्या हैसियत है? वो से पाक सरकार, वो से पाक 70 हजार को बगैर माइक के सुनाते थे। 70 हजार को बगैर माइक के सुनाते थे। तुम तो गिने चुने हो, हम भी तो उन्हीं के गुलाम हैं। कितना को सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं? माइक पे तो रोज बोल रहे हैं, अगर आज माइक पे नहीं बोलेगा तब भी सुनाएंगे, मगर शर्त एक है जब आप सुनोगे तब सुनाएंगे। आप सोओगे तो हम भी सो जाएंगे, नींद हमें आपसे ज्यादा सता रही है, क्योंकि कल हमें अल्लाह अकबर कबीरा हमें झारखंड जाना है, तो सफर हमारा भी बहुत लंबा है। हम आपको ज्यादा डिस्टर्ब परेशान नहीं करेंगे, तवज्जो रखें। अल्लाह पाक ने फरमाया मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। आप जानते हो लिबास का क्या मतलब होता है? लिबास कहते हैं इंसान जो पहनता है, जो ड्रेस यूनिफॉर्म होती है उसको क्या कहा जाता है? लिबास। और एक चीज बताऊं मैं आपको, लिबास अगर हैसियत के मुताबिक हो, लिबास अगर मर्जी के मुताबिक हो ना, इंसान उसको पहनना पसंद करता है। और लिबास अगर मर्जी के मुताबिक नहीं है ना, तो फिर उसको चाहे वो कितना ही कीमती हो, इंसान उसको कभी पहनने की कोशिश नहीं करता है, उससे नफरत करता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। और दूसरी तरह जानते हो कि लिबास क्यों पहना जाता है? लिबास पहना जाता है तजम्मुल के लिए, खूबसूरती के लिए, हुस्न जमाल के लिए। इंसान इसीलिए तो ड्रेस पहनता है कि मैं अच्छा दिखूं, मेरा रहन सहन अच्छा हो। ब्लैकबेरी पहनता हूँ, लोग मुझ पे रश करते हैं। अल्लाह अल्लाह बेहतरीन ओरिजिनल खादी पहनता हूँ, लोग पहचान लेते हैं बड़े घराने से ताल्लुक रखता है। मैं लिनन पहनता हूँ, लोग पहचान लेते हैं ये तो 1000 रुपए पर मीटर का कपड़ा पहनता है। अल्लाह अल्लाह, यानी इंसान लिबास इसलिए पहनता है उसकी ब्यूटी में इजाफा हो जाए, उसके हुस्न जमाल में, खूबसूरती में इजाफा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। अब रब फरमा रहा है अल्लाह ने औरत को मर्द का लिबास बताया और मर्द को औरत का लिबास बताया, तो मतलब ये है इंसान जब तू रिश्ते अज़वाजी में मुंसलिक हो जाए, जब तेरी शादी हो जाए और शादी और निकाह के बंधन में बन जाए, फिर तेरा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए, झगड़े का अड्डा नहीं बनना चाहिए। यानी जिस तरह से लिबास पहनने के बाद इंसान अच्छा दिखता है, ऐसे ही जब तेरा रिश्ता और शादी और निकाह हो जाए फिर तेरा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बल्कि जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए। तेरे घर से
के आला हजरत नारे गौसियत हुजूर सैयद अफरोज में साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। 3 वजह से शादी करता है इंसान। 3 चीजें देखी जाती हैं रिश्ते में। नंबर 1 माल, टक्कर। टक्कर देखते नहीं देखते हैं, सबसे पहले टक्कर है ये नहीं। माल, बिचौलिया भी साहब कहता है कि पार्टी वोट टक्कर की। रिश्ते करना कराना अच्छी बात है, रिश्ते कराना चाहिए। बिचौलिया जानते हैं ना, बिचुआ जो बीच में होता है दोनों को मिलाने वाला बिचौलिया। बिचौलिया बोलते हैं यहाँ, कोई हो तो बुरा मत मानना। अच्छी बात है रिश्ते करना कराना, मगर इस वक्त बिचौलिया होलसेल से झूठ बोल रहे हैं। बड़ी टक्कर की पार्टी है। लड़के वालों में जाएगा, अरे लड़की तो ऐसी पूरी बस्ती में ना हुई, और पार्टी, बस पार्टी का तो कुछ पूछ नहीं पाए। मंगनी में बुलेट पक्की है, और फिर समझ लो जब मंगनी में बुलेट देंगे तो फिर शादी में तो साफ कार है ही पक्की। पर इस बेचारे का हिसाब साइकिल देने तक का नहीं। लड़की वालों की तरफ जाएगा, अरे लड़का बहुत जोर का है, बहुत करनी पार्टी है, पूरी बस्ती में ऐसी पार्टी नहीं। अल्लाह यानी इंसान सबसे पहले टक्कर देखता है माल में, इमारत में, बिल्डिंग में, रहन सहन में। इमारत कैसी टक्कर है या नहीं? सब पूछे जमीन कितनी है, बोले आ चलो जंगल दिखा के लाए कितनी है। तो हाथ दे नजर सब अपनी तो है, जहां तक नजर पहुंच रही है। कौन से कोई उसे रजिस्ट्री देखनी है, जमीनी कागजात देखने, बोले सब अपनी है। निकाह सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताइए, आप सुन्नते रसूल कायम करने के लिए जा रहे और उस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर, माल पर, दौलत पर, टक्कर पर, शोहरत पर, बिल्डिंग पर, इमारत पर। इंसान की सोच फिक्र और उसकी थोट देखिए कितनी गिर चुकी है। लड़की देखने जाए, लड़की कैसी है, लड़का भी कहता है अम्मा मेरी बहन गौर से सुन लेना, देहातन ना हो, छोहड़ ना हो। हाँ, अगर लड़की की 19-20 हुई करने का नहीं। अल्लाह अकबर। यानी समझाया जा रहा है, टक्कर देखी जा रही है माल में। माल हो, इमारत हो, जमीन हो। लड़का शराब पीता हो चलेगा, जुआ खेलता हो चलेगा। हजरत जूस पीते हैं, जूस शराब थोड़ी है, बियर को जूस बताना है हमारे नौजवान। एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक। बाहर जितने लड़के काम करते हैं तकरीबन 80-90% मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरे तजुर्बे के मुताबिक नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। उसे कहते हैं एनर्जी ड्रिंक है। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? नहीं होगा। जंगली जानवर का नाम अगर आप बकरी रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? नहीं होगा। बियर का, शराब का नाम अगर आप जूस रख दो, एनर्जी ड्रिंक रख दो, क्या जायज हो जाएगी? वो शराब है तो हराम है, हराम है, हराम है। और ये कुरान का फैसला है, शरअ का फैसला है। और शरीयत में उन्हीं चीजों को इल्लीगल और नाजायज और हराम करार दिया गया जिसमें नुकसान है। जिस चीज में फायदा है उसे हराम करार नहीं दिया शरीयत में। इंसान के अंदर सबसे कीमती उज़्व क्या है, बताइए आप मुझे। इंसान के अंदर सबसे महंगी चीज क्या है? ये जो भेजा है ना, इस भेजे के अंदर दिमाग है, दिमाग। ये सबसे कीमती है। अगर किसी के अंदर दिमाग नहीं है ना, पागल है, तो उसे विरासत भी नहीं मिलती, प्रॉपर्टी मिलती है पागल को। अरे भाई, कानूनन पागल को प्रॉपर्टी मिलती है। पागल को प्रॉपर्टी दे दोगे 100 बीघे एक दिन में फुर कर देगा। 5 बीघे तेरे नाम, 10 बीघे तेरे नाम, 20 बीघे उसके नाम। वो तो पागल है। तो सबसे कीमती उज़्व क्या हुआ इंसान का? दिमाग। अब इंसान, नौजवान को देखो तो सही,
कभी बाप को गाली, कभी भाई को गाली, कभी बड़ों को गाली। हजरत नशे में था, नशे में था, नशे में। तुझे तलाक 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 तलाक, जब तक सांस नहीं फूले इसकी जबान ही नहीं रुके। फिर फोन कर रहा, हजरत गुस्से में था, नशे में था, मुझे पता नहीं क्या कह दिया, अब निकालो कोई रास्ता। हजरत मुझे तो सिर्फ यही याद है कि एक ही मर्तबा कहा है, वो थूक निकल गया इसका कहते कहते तलाक 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 तलाक। तो जब पत्थर शीशे पे मार दिए, अब फोन कर रहा है कोई रास्ता निकालो। बरेली शरीफ के तरफ का एक मैटर था, उनका फोन आया, प्रधान जी थे, किसे फोन आया, बोले हजरत प्रधान जी ने तलाक दे दी, 3 तलाक है। मैंने कहा तलाक मुगल्लज़ा हो गई, इसके आगे क्या करना, मैंने वही करना है जो आपने सुना। दूसरे से निकाह होगा, उसकी इज्जत होगी, उसके बाद में कहीं जाके अगर ये रखना चाहे तो रख सकता है, फिर निकाह होगा इसका। अरे तलाक के लिए कानून और इतनी सब पाबंदियां इसीलिए तो लगाई गई ताकि कोई छोड़े ना। और तलाक की लगाम अल्लाह पाक ने औरतों के हाथ में नहीं दी, मर्दों के हाथ में दी है। अगर औरतों के हाथ में तलाक की लगाम होती ना, तो दिन में कम से कम 10 मर्तबा मर्द को तलाक मिलती। जैसे कुछ हुआ, सूट नहीं ला के दिया, तुझे तलाक, मैके को नहीं लेके गए, तुझे तलाक, जहां मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई, तुझे तलाक। औरत इमोशनल होती है, कमजोर होती है, औरत जज्बाती होती है। अल्लाह पाक ने तलाक का मसला औरतों के हाथों में नहीं दिया, इसलिए औरत इमोशनल, कमजोर, जज्बाती होती है, मर्द मजबूत होता है, मर्द सदमे बर्दाश्त कर लेता है, मर्द हिम्मत वाला होता है, इसीलिए तेरे हाथ में तलाक का मसला दिया है। तो जब तलाक तेरे हाथ में, तो फिर ये तलाक 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 तलाक, क्या होता है ये? अब निकालो रास्ते। फोन आया, बोले हजरत तलाक दे दी। मैंने कहा हो गया काम, कोई रास्ता? मैंने कहा कोई रास्ता नहीं साहब, कहीं भी घूम लो पूरे हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता बताएगा तो गलत बताएगा, रास्ता कोई नहीं। कुछ दिनों बाद फोन आया, हमने उनसे कहा हो गया वो वाला मैटर? बोले और वो तो हजरत हो भी गया। मैंने कैसे? बोले हजरत एक पीर साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारे मदरसे की 50,000 की रसीद कटवा लो, तलाक कोई चीज नहीं है। हमने कहा पढ़ा दे रहे, 50,000 की रसीद कटी किसी पीर साहब की, बात नहीं। मैंने कहा 50,000 नहीं, अगर पूरी दौलत भी दे देता तब भी जायज नहीं। पीर हो, फकीर हो, सैयद हो, खैर सैयद हो, आलिम हो, खैर आलिम हो, जो मसला तुम्हारे लिए है वही मसला मेरे लिए है। 5 टाइम की नमाज आप पढ़ोगे, 5 ही टाइम की मैं पढ़ूंगा। 1 महीने के रोजे तुम पे फर्ज है, वही रोजे मुझ पे फर्ज है। शरअ पे अमल करना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो वैसे ही मेरे लिए जरूरी है। पीर फकीर सब बराबर, सब बराबर है। बेशक बेशक। मगर जैसे मुरीद वैसे पीर, आला हजरत जैसे पीर थे वैसे उनके मुरीद, मुफ्ती आदम ही जैसे पीर थे वैसे उनके मुरीद, आपके संभल के अजमलुल उलमा हजरत जैसे पीर थे वैसे उनके मुरीद, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे वो पीर थे वैसे उनके मुरीद, आज के दौर में जैसे पीर वैसे उनके मुरीद। अब तो पीर मुरीदी इस पर है, गरीबों को तो पहचाना भी नहीं जाता, मुसाफा ही बस उंगलियों से। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मोटा लिफाफा हो, आइए इधर तशरीफ लाइए। हैं? मुरीद जानते हो कब होता इंसान? जब कारोबार नहीं चल रहा, घर से बीमारी नहीं निकल रही, बोला मुरीद हो जाओ। कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं नेकियों से कितनी दूर, सही रास्ते से कितनी दूर, शरीयत पे अमल कर रहा हूं या नहीं, कोई मतलब नहीं। जहां कारोबार में घाटा हो, अब तफ्तीश करता फिर रहा पीर कौन से चलना है इस वक्त अच्छे, जिनके ताबीज में दम हो, है? इस चक्कर में पीर साहब कोई ताबीज बनाने वाली बिल्डिंग बन जाए, मिलक में सबसे ऊंची, वो पीर साहब इस चक्कर में है, कोई मोटी मोटी फंस जाए, हमारे लिए हिसाब की रेटा निकल जाए, हमें कोई मोटा लिफाफा मिल जाए, हमारा भी काम बन जाए। मैं हर पीर की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं पीर के भेष में जो शैतान है उनकी बात कर रहा हूं। अगर पीर नेक साले है तो वो तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने के कब्र में भी बचाएगा। बोल दो सुभान। हजरत हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा जोहर पढ़ते नहीं, असर पढ़ते नहीं, मगरिब पढ़ते नहीं, इशा पढ़ते नहीं। तो कह रहे बहुत पहुंचे हुए। बोले हजरत मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा ठूस मिलक में रहा है, ठूस सलारपुर में रहा है, नमाज मदीने में पढ़ता, कहाँ का फलसफा पढ़ा रहा है। आका हुसैन ने नमाज बचाने के लिए मक्का छोड़ा, मदीना शहरे रसूल छोड़ा। मदीना कोई छोड़ने की जगह है, शहरे रसूल कोई छोड़ने की जगह। शहरे रसूल से, रोजे रसूल से जब हाजिरी देकर वापस आओ, वक्त हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कलेजा मुंह को आने वाला है। आला हजरत कहती जानो दिल होशो खिरत सब तुम मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। समझे नहीं आप समझे नहीं क्या शेर? समझा तो अगर समझ में नहीं आया हो तो है? ट्रेन होती है, एक उसका इंजन होता है, इंजन चला गया, डिब्बे वहीं के वहीं रह गए। और सबसे कामयाब चीज क्या है ट्रेन में? इंजन है साहब, इंजन के अलावा कुछ है डिब्बा हिल जाएगा है? ऐसे इंसान है, इंसान के अंदर दो तीन ही चीजें काम की, जान, दिल, होश, खिरत। खिरत कहते हैं अकल को। ये चीजें तो काम किए हैं। एक जान, इंसान का दिल, जहां ये खत्म वहीं हार्ट अटैक। हर मरने वाले को हार्ट अटैक होता, इसी पे तो कब्जा किया जाता। जब धड़कने खत्म तो मौत, यही तो है मौत। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत कहते हैं अपने बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम को छोड़कर आ रहे थे तकरीबन मुंबई हज के लिए। आप हज फर्ज कर चुके थे, जैसे छोड़ के आए ना तो फिर साहब मदीने की लो लग गई, नबी की याद आ गई। और कहते हैं रजा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम खाली बचे हो, सारा सामान तो रोज़े रसूल पहुंच गया है। हाँ, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अल्लाह 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 अल्लाह। अब बताइए मुझे, शहर रसूल मदीनातुल मुनव्वरा कोई छोड़ने की जगह है? मगर आका इमाम हुसैन ने छोड़ा, करबला के मैदान गए, जानते थे वापस नहीं आऊंगा। नबी ने बशारत दी थी, बताया था, मगर गए क्यों? इसलिए करबला जाऊंगा, नमाज को बचाऊंगा। आज का पीर कहे नमाज मदीना में पढ़ता है, मैं कहूंगा ये तेरा धोखा है, फरेब है, ये शैतानियत है। इसलिए जो नमाजी नहीं वो पीर नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ा चर्चा था आपका, बहुत सारी करामतों का ज़ुहूर होता था। साहब एक शख्स ने सोचा हजरत के पास रहकर कोई करामत देखूंगा और मुरीद हो जाऊंगा। अब आ गए साहब मुरीद होने के लिए। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल हो गया। बिस्तर उठाया और जाने लगे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, न भाई तुमने आने का बताया और न जाने का बताया, मामला क्या बता तो जाओ, क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो 1 साल बाद? बोले हुजूर एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। बोले बड़ा नाम सुना था तुम्हारा और इंतजार में 1 साल गुजर गया। बोले क्या सुना था? बोले बड़ा चर्चा सुना था साहब, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, ये करामत वो करामत, ये करामत वो करामत। बोले 1 साल तो हमें हो गया, हमने तो कोई करामत न देखी साहब। मुरीद होने के लिए आए थे, करामत देखते तो साहब मुरीद होते। अच्छा जी, आपने फरमाया अच्छा? हाँ। आपने इरशाद फरमाया कोई करामत नहीं देखी? बोले नहीं। बोले तुमने क्या क्या देखा? बोले मैंने ऐसा देखा, एक पीर साहब को मैंने आसमान में उड़ते हुए देखा हवा में। बोले एक पीर साहब को मैंने कहते हैं पानी में तैरते हुए देखा, और एक पीर साहब को मैंने आग पे चलता हुआ देखा, और तुमने तो कुछ भी नहीं दिखाया। 1 साल तो हो गया मुझे देखते देखते। आपने साफ फरमाया सुन, तो कह रहा है हवा में मैंने पीर फकीर को उड़ते हुए देखा है। अबे हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हवा
हाथी और मच्छर भी उड़ते हैं, जहां उन्हें पीर बना ले, उनका मुरीद हो जा। अच्छा, ये कहता है कि पानी में दरिया में चलते हुए एक पीर साहब को देखा, सूफी जी को देखा। सुन, दरिया में तो मछली और मेंढक भी तैरते हैं, सही बात है। दरिया में तो